BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ افریقی ممالک سے یورپ آنے والے تارکین وطن جان جوکھوں میں ڈال کر صحارا ریگستان عبور کرتے ہیں۔ ان تارکین وطن کی ایک نئی کھیپ یورپ پہنچا چاہتی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان غیر اعلانیہ جنگ بند ہونی چاہیے اور پاکستان اپنے وعدے پورے کرے۔ بھارت کے شہر کلکتے میں ایک زیر تعمیر فلائی اوور منہدم، کم از کم 15 افراد ہلاک، جبکہ درجنوں اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یورپ کو مشرق وسطی کے جنگ زدہ علاقوں سے آنے والے تارکین وطن کے علاوہ افریقی ممالک سے بحیرہ روم کے ذریعے آنے والوں کا بھی مسئلہ درپیش ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں اپنی نیوی میں اضافہ کرے اور تارکین وطن کو واپس لیبیا بھیجے۔ شمالی افریقہ سے اس سال اب تک 13,000 سے زیادہ تارکین وطن بحیرہ روم کے ذریعے اٹلی پہنچے ہیں، لیکن اس خطرناک سمندری سفر کو طے کرنے میں سن 2014 سے اب تک تقریباً 6,000 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تارکین وطن کے بین الاقوامی ادارے IOM کے اندازوں کے مطابق گزشتہ سال بحیرہ روم تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ افراد نے صحارا ریگستان کا خطرناک سفر طے کیا۔ افریقہ سے یورپ کا یہ سفر نائجر میں اگادیس کے مقام سے شروع ہوتا ہے۔ اگادیس سے ہمارے نامہ نگار تھامس فیسی کی رپورٹ، حسین عسکری کی زبانی۔ صحارا کا طویل سفر یہاں نائجر سے شروع ہوتا ہے۔ لیبیا کی سرحد تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ وسطی اور مغربی افریقہ سے آنے والوں کا صرف ایک مقصد ہے، یورپ میں ایک نئی زندگی۔ آج رات ایک مرتبہ پھر کئی امیدیں لیے انہوں نے صحرا میں سفر شروع کیا ہے۔ جب سورج طلوع ہوگا تو شاید ان میں سے کئی اس کی حدت برداشت نہ کر سکیں، کئی کو شاید اسمگلر بیچ راستے میں چھوڑ دیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ان میں سے کئی افراد ایسے ممالک سے ہیں جہاں روزگار کے مواقع کم اور مستقبل غیر یقینی ہے، اسی لیے وہ اس متبادل راستے پر چل پڑتے ہیں۔ سیمل کی طرح بعض افراد جنگ سے بچ کر آئے ہیں۔ آپ کو رسک لینا ہوتا ہے، جب آپ کو کچھ حاصل کرنا ہو تو رسک لینا پڑتا ہے، اس لیے میری ترجیح یورپ ہے۔ صحارا میں مائیگریشن ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ یہاں سرکاری اہلکار اور فوجیوں کو رشوت دینی ہوگی اور ملیشیا کو بھی پیسے چاہیے۔ اسمگلروں کے لیے اس سے زیادہ سود مند کچھ نہیں۔ ہم پیسے اس حساب سے لیتے ہیں کہ کون کہاں سے آیا ہے، لیکن اوسطاً لیبیا کی سرحد تک کا سفر انہیں تقریباً $200 میں پڑتا ہے۔ ہمیں یہاں آئے صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے یہاں سے درجنوں پک اپ ٹرک اور سینکڑوں تارکین وطن کو جاتے دیکھا ہے۔ یورپ میں تو سرحدوں پر سختی کی جا رہی ہے، لیکن آپ اس صورتحال کو کیسے روکیں گے؟ یہاں سے چند میل دور کئی تارکین وطن روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سب اگادیس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک عرصے سے انسانی اسمگلروں کا گڑھ رہا ہے۔ اسے وہ مقام کہا جا سکتا ہے جہاں نئی زندگی کے خواب لے کر آنے والوں کا سامنا ان سے ہوتا ہے جو پرانی زندگی کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تارکین وطن لوٹ آئے ہیں۔ انہیں سفر کے دوران صرف فاقہ کشی ہی نہیں بلکہ مار پیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ ہارے ہوئے ہیں۔ لائبیریا سے تعلق رکھنے والے جیمز گے اٹلی جا کر کمپیوٹنگ پڑھنا چاہتے تھے اور انہوں نے لیبیا کی سرحد تک پہنچنے کے لیے بہت سے خطرات کا سامنا کیا، لیکن آگے جس کشتی پر سفر کرنا تھا اس کی حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ میں کشتی پر چڑھنے سے ڈر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کشتی بہت اچھی ہے، آپ وہاں صرف 3 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ وہ سب جھوٹے ہیں۔ کامیابی کا امکان صرف 20%، لیکن ہلاک ہونے کا امکان 80% ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جو گھر لوٹتا ہے اس کے بدلے درجنوں افراد سے بھرا ہوا ایک ٹرک صحارا کے خطرناک سفر پر روانہ ہوتا ہے، اور وسیع پیمانے پر یہ ہجرت جاری ہے۔ تھامس فیسی کی رپورٹ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے BBC کی نامہ نگار یلدا حکیم کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک غیر اعلانیہ جنگ جاری ہے جسے ختم کرنا ہوگا۔ افغانستان چھوڑ کر یورپ کا خطرناک سفر کرنے والے تارکین وطن کے بارے میں صدر غنی کا کہنا تھا کہ انہیں ان سے
कोई हमदर्दी नहीं। The journey is made voluntarily. ये सफ़र वो अपनी मर्जी से करते हैं। वो इसके लिए $10,000 से $30,000 तक अदा करते हैं। वो इस सफ़र की वजह से अपने ख़ानदानों को मुफलिस बना रहे हैं, क्योंकि ये सफ़र झूठे मफरूज़ों पर मबनी है, लेकिन जाने का फ़ैसला उनका अपना है। जब वो जाते हैं तो वो एक समाजी माहिदा तोड़ कर जाते हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है। ये उनका अपना फ़ैसला है। ख्वाब खरगोश में रहते हुए किसी मुल्क की बका मुमकिन नहीं, इसलिए मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा आज़म अपने लोगों के लिए इज्जत, उम्मीद और साबित कदमी के साथ जिंदा रहने को यकीनी बनाना है। क्या ये मुल्क हालत जंग में है? जी, ये मुल्क इलाकाई और आलमी जंग के लिए प्लेटफॉर्म बन गया है। हम हालत जंग में हैं, ताहम ये सिविल वॉर नहीं। अफ़गानों के माबेन जो जंग है वो एक इलाकाई और आलमी जंग का बहुत ही छोटा हिस्सा है। अलकायदा बहुत हद तक मख्फी हो गई है, लेकिन अब भी पूरी तरह कायम है। दाइश खबरों की शह सुर्खियाँ समेट रही है, लेकिन हमें अलकायदा पर भी तवज्जो मरकूज करना होगी, वगरना खुदा न खास्ता हमें एक और अचंबा हो सकता है। तालिबान अफगानिस्तान में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए हैं? क्योंकि उनका इलाकाई हमायती नेटवर्क सलामत है। तो क्या पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है? उसका फैसला करना औरों का काम है। लेकिन बतौर सरबरा क्या आप समझते हैं कि वो एक डबल गेम खेल रहे हैं? हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। हमने मसाइल की शनाख्त कर दी है। गुज़श्ता बरस किए गए पाकिस्तान के दौरे के वक्त से मैं कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान एक गैर एलानिया जंग जारी है, एक गैर एलानिया अदावत। हमें इसको ख़त्म करना होगा। 4 रुकनी मुज़ाकराती अमल के तहत हमने तहरीरी मुआहिदों तक तो काफ़ी पेशरफ्त की है, लेकिन अब देखना यह है कि उन मुआहिदों की पासदारी होती है या फिर जैसा कि आप कह रही हैं एक डबल गेम खेली जा रही है। अफ़गान सदर अशरफ गनी, जिनसे यल्दा हकीम ने बात की। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में एक ज़ेर तामीर पुल के गिर जाने से कम 15 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि पुल के नीचे बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली से सुहेल हलीम की इस रिपोर्ट के बाज़ मनाज़िर आपके लिए तकलीफ दे हो सकते हैं। पुल के गिरने का भयानक मंजर एक सीसीटीवी कैमरे ने महफूज कर लिया। हादसे के बाद से इलाके में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। कुछ ना कुछ होता है, सरकार कुछ करता नहीं है। अभी तक पुलिस का कुछ हुआ नहीं। जो लोकल पुलिस है वही काम आ रहा है। लोग नीचे से पानी का बोतल मांग रहे हैं। लोकल पब्लिक जितना हेल्प कर रहा है, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। ये इंतहाई तंग रास्तों वाला इलाका है, इसलिए इमदाद के काम में दुश्वारी हो रही है। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इमदाद के काम में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फौज के एहलकार भी मसरूफ हैं, लेकिन भारी मशीनों को इलाके तक पहुंचाना मुश्किल है, जिसकी वजह से अब तक कंक्रीट के बड़े स्लैब नहीं हटाए जा सके। ये पुल कई साल से ज़ेर तामीर है और मकामी लोगों के मुताबिक इसके नीचे बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं। किस कारण गिरा है तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये कुछ ना कुछ जल्दबाजी में काम करने का नतीजा है कि ब्रिज गिरा और बहुत साल से ये ब्रिज बन रहा है और लोकल लोग इस ब्रिज का खिलाफ शुरू से। शहर के तमाम अस्पताल तैयारी की हालत में है और वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि इस वाक़े के लिए कसूरवार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। वफाकी हुकूमत का कहना है कि रियासत को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी, लेकिन जानी नुकसान का सही अंदाज़ा मलबा हटने के बाद ही लगाया जा सकेगा। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। हुकूक़ इंसानी की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कतर में सन 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बनाए जाने वाले स्टेडियम से मजदूरों से जबरी मशक्क़त ली जा रही है। एमनेस्टी का इल्ज़ाम है कि खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में मजदूरों को जबरन गंदी जगह पर रहना पड़ता है, उनसे भर्ती के लिए भारी फीस वसूल की गई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन क्यूबा की खलीज गुआंतानामो में कायम अमरीकी फौजी जेल से तकरीबन 1 दर्जन कैदियों को 2 मुख्तलिफ मुल्कों में मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा है। कैदियों की ये मुंतकली एक ऐसे वक्त की जा रही है जब ओबामा इंतजामिया ने इस मुतनाज़ा जेल को बंद करने का फैसला किया है।
जनूबी अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुल्क के सदर जेकब जुमा ने अपने निजी घर की मरम्मत के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। फैसला हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लिए एक बड़ी फतह है और उनका कहना है कि वो सदर के मुआवजे के लिए दबाव डालेंगे। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में नौजवान क्यों भारतीय फौज में शामिल होने की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और हमारे पेशावर ख़वातीन के सिलसिले की आखिरी कड़ी में मिलिएगा ज़राअत से वाबस्ता ताहिरा कौसर से। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में एक तरफ मुसल्लह तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सैकड़ों नौजवान हर साल भारतीय फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं। भारतीय फ़ौज कश्मीर में सद्भावना यानी खैर सगाली नामी ऑपरेशन के तहत तालीम, सेहत और तरबियत के कई प्रोग्राम चला रही है। इस ऑपरेशन को बाज़ समाजी हल्के जंगी हरबा समझते हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। सेना में जा रहे हो, ईमानदारी से भर्ती हो, सेवा करो। रोजगार की तलाश में थक हार चुके ये कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ रहे हैं। हर साल सैकड़ों कश्मीरी नौजवान सख्त तरीन तरबियत के बाद भारतीय फौज का बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं। पासिंग आउट परेड पर इनके वालिदैन भी इनका हौसला बढ़ाते हैं। भारतीय फौज न सिर्फ कश्मीरियों को भर्ती करने में संजीदा है, बल्कि समाजी भलाई के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेहत-ए-आमा, तालीम और पेशेवराना तरबियत के कैंप भी मुनक़द होते हैं। हमारे फ़ौज का बस यही मकसद होता है कि जो बच्चे हैं उनको जितना मदद कर सके करें। यहाँ पर कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू हमने कई स्कूल चला रहे हैं, आर्मी गुडविल स्कूल। इसके अलावा जो कई स्कूल जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे से हो सकता है, हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनको हम पहुँचाएँ। क्योंकि रोज़गार की थोड़ी सी कमी है, पैसे नहीं है और घर वाले भी बहुत परेशान है क्योंकि हम बेकार है। अब नहीं रहते, अब तो बहुत आते हैं क्योंकि अब लोग ज़्यादातर फौज में आते हैं। पहले डरते थे कि वो मुझे दहशतगर्द का डर था, लेकिन अब दहशतगर्दी भी ख़त्म हो गया, अब तो फौज में आना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के समाजी और सियासी हलके फौज की इन सरगर्मियों को जंगी हरबे के तौर देखते हैं। हम इसकी बिल्कुल मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे, और हम लोगों को समझाते हैं अपनी तरफ से पूरी तरफ से कि आप इस ऑपरेशन सद्भावना के हिस्सा ना बनिए। ये दुश्मन की एक वॉर टैक्टिक्स है। भारत नवाज सियासतदान तो यहाँ तक कहते हैं कि फौज फलाही कामों में खौमखा टांग अड़ा रही है। फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। अगर आप मानते हैं कि पठानकोट में जो मिलिटेंट थे वो पाकिस्तान से आए, तो अगर ये सद्भावना के बदले में सरहदों की हिफाजत करती हुई हिंदुस्तान पे इनका एहसान होता है। फौज की समाजी अमूर में मशगूलियत पर अवामी और सियासी हलके भले ही नाराज हों, लेकिन बेरोजगारी हर साल सैकड़ों कश्मीरियों को फौज में भर्ती होने पर मजबूर कर रही है। रियाज मसरूर, बीबीसी न्यूज़, श्रीनगर। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। गज़नफर हैदर का आर्टिकल, अब न तो वसीम है, न वक़ार और न ही शुएब। जब कराची में अमरीकी जहाज़ अगवा हुआ, इस फीचर और पाक ईरान ताल्लुकात से मुताल्लिक़ खबर, इन सब पर नज़र बार बार आ रही है। पाकिस्तान के दही इलाकों में ख़वातीन के काम करने की शरह शहरी इलाकों की निस्बत ज़्यादा है। ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत में से तकरीबन 25% ख़वातीन ज़राअत से वाबस्ता हैं। मुलाज़मत पेशा ख़वातीन के बारे में बीबीसी उर्दू की सीरीज़ में आज आखिरी किस्त पेश की जा रही है। ताहिरा कौसर वैसे तो कहीं भी मुलाज़मत नहीं करती, लेकिन माल मवेशियों और फसलों की देखभाल उनकी ज़िम्मेदारी है। हमारी साथी सारा हसन ने उनसे बात की। ताहिरा कौसर की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैं गाय भैंस के लिए चारा काट रही थी, तो वो हाथ वाला टोका जब वो लगा और मेरा नाखून पूरा उतर गया था। अल्लाह का शुक्र है कि काम चलता रहता है। मेरा नाम ताहिरा कौसर है। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। मेरा मियाँ भी यही काम खेती बाड़ी करता है, मैं भी करती हूँ। सुबह उठती हूँ मैं 5 बजे तकरीबन, गाय की तरफ आती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, दूध निकालती हूँ। ज़ाहिर बात है मुश्किल तो हर इंसान को लगता है, ये घर का भी काम करना भी मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा काम तो जानवरों का मुश्किल होता है। उनके लिए चारा भी बारिश में काट कर लाना पड़ता है।
हम तो मौसम को भी नहीं देखते हैं, बारिश भी हो तो तब भी हम जानवरों का तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जाहिर बात है, वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हम उनका ख्याल नहीं करेंगे। नहीं, हमारे यहाँ सब मिलकर करते हैं। औरतें भी काट कर चारा काटती हैं, गाय भैंस को औरतें करती हैं, मियाँ जो उनके हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, सब बराबर है। अल्लाह मुझे इतनी सेहत दे कि मैं अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूं। मैं इधर से घास काट कर लेकर जा रही थी तो बड़ी बेटी 2 साल की थी और वो 6 माह की थी, छोटी बच्ची दूसरे नंबर वाली, उसको उसने दवाई दे दी। मैं घास काट कर आई तो आगे देखा बच्ची बिल्कुल मतलब एंड टाइम पे पहुंची हुई थी। मैं उसको भागती उठाकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर कहता है कि ये तो ख़त्म हो चुकी है, इसको फ़ौरन बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मैं समझी मेरी बच्ची ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त ले गई हॉस्पिटल, मेरी बेटी अब ठीक हुई है। बेटियों को तो हमेशा यही तरबियत देती हूँ कि घर का भी काम करे, गाय का भी करे। जैसे नसीबों की तो कोई बात नहीं होती है कि नसीब में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। मैं तो ये कहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे बने, पढ़ लिख कर। बेटा तो कहता है मैं पायलट बनूँगा। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पे देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। आज वर्ल्ड T20 में ख़वातीन के दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 6 रन से शिकस्त दी, जबकि मर्दों के दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले खेलते हुए अब से कुछ देर पहले तक 15 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए थे। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि आज साइरबीन का अहम मौजू था अफ्रीकी ममालिक से यूरोप की जानिब तारीकीन वतन का बढ़ता हुआ नया रेला। बहर रूम के जरिए आने वाले ये तारीकीन वतन जान जोखों में डालकर सहारा रेगिस्तान अबूर करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो बहर रूम में अपनी नेवी में इजाफा करे और तारीकीन वतन को वापस लीबिया भेजे। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामी। इसके साथ ही साइरबीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।